Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about plants in which we have seen various classifications, such as we have learned about herbs, shrubs, trees, and then also we have learned about the types of fruits. So, I hope you all have revised that topic. And now, in today's class, we are going to continue our chapter 4 and we are going to start with the topic root modifications. So, root of some plants are modified to perform additional functions. So बच्चों ये चीज़ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही समझ ली थी कि हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस है एंड वो मॉडिफिकेशंस क्या कर रही है, कुछ कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करेंगी. So for food storage, the roots of some plants such as radish, carrot, turnip, sweet potato and beetroot store food and become fleshy. So बच्चों हमारे पास यहाँ पर कुछ plants है. For example, we have carrot, we have radish and इन plants की ये सारे stems क्या करती है, ये लोग food को store करते हैं and ये क्या बन जाते हैं, ये fleshy बन जाते हैं. So now plants like money plants, black peppers and ivy have roots that help them in climb walls, rocks or trees. Now अब हमारे पास कुछ और stems है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर plants है मनी प्लांट, ब्लैक पेपर एंड इन लोगों के पास कैसी रूट्स है, इनकी रूट्स इनको हेल्प करती है कि ये वॉल्स को क्लाइम कर सके, ये रॉक्स को क्लाइम कर सके. Now we have plants like dodder have parasitic roots for absorbing water and nutrients from the host plant. So now अब हमारे पास another plant है जैसे कि dodder और ये parasitic plants है. So बच्चों parasitic plants क्या होते हैं, जो कि parasites को खा के अपना nutrition obtain कर पाते हैं. So ये parasitic roots क्या करती है, ये absorb करती है water को and also ये nutrients जो है वो निकाल कर लाती है host plant से. So ये किसी दूसरे plant के ऊपर dependent होते हैं जिससे ये अपना न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं. सो सम प्लांट्स लाइक डेलिया एंड एस्पैरागस डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट. सो हमारे पास कुछ और प्लांट्स है जैसे कि डेलिया एंड एस्पैरागस एंड ये क्या करते हैं, ये न्यू प्लांट्स डेवलप करते हैं उनकी ही रूट से ताकि इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल पाए. So now plants like bamboo, sugarcane and banyan, they have prop roots from their branches for additional support. So now we have some other plants also जिनका example क्या है, sugarcane plant and इन plants के पास कैसी roots होती है, prop roots. और ये prop roots क्या कर रही होती है, ये additional support जो है वो provide करवा रही होती है अपने plant को. So now over here we have dahlia and banyan tree. So now let's see the pickup more. So the great banyan tree in Kolkata is very old, over 200 years. So बच्चों हमारे पास यहाँ पर ग्रेट banyan tree है कोलकाता के अंदर और ये जो banyan tree है ये over 200 years से भी ज़्यादा पुराना है. So it is huge with a circle around it that is about 404 meters long. And अब ये जो tree है ये कितना long है, ये 404 meter long है. So it has more than 1600 roots that stick out of the ground. एंड इसके अलावा इनके पास 1600 रूट्स भी है जो कि हमारे ग्राउंड से बाहर आ रही होती है. So now students over here you all have brush up session and इसमें आप लोगों को क्या करना है, first part you all have आपके पास कुछ statements है and इन statements के लिए आप लोगों को T लिखना है for true and F लिखना है for false. So first of all we have climber plants have strong stems that can stand upright on their own. So this is false, ये statement गलत है क्योंकि climber plants की जो stems है वो weak होती है and वो अपने आप straight खड़े नहीं हो सकते. Then we have creeper plants and creeper plants जो है वो usually upward grow कर रहे होते हैं instead of along the ground. So ये भी statement गलत है क्योंकि creeper plants जो है वो ground के along ही grow कर रहे होते हैं instead of rising upward. So आप यहाँ पर भी false लिखोगे. Then students next we have complete the sentences with suitable words. So climber plants use different methods dash other structures or plants for support. So आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि climber plants जो है वो कौन से different methods को use करते हैं जिससे वो other structures और plants को support कर सकते हैं. So climber plants के पास क्या होते हैं, उनके पास tendrils होते हैं जिसकी help से वो different structures और support के ऊपर climb up कर पाते हैं. So we are going to write over here climb.
Then creeper plants have long stems that spread out along the ground. Now students, next we have shoot system. So the shoot system ये क्या है? Shoot system is the upper part of a plant that we can see above the ground. So shoot system जो है वो हमारे ground के above part होता है, हमारे ground के ऊपर वाला part होता है जिसको हम shoot system बोलते हैं. So it consists of different parts that help the plant grow and thrive. So now जो हमारा ये shoot system है इसके अंदर different parts होते हैं and ये different parts की वजह से ही हमारा plant जो है वो survive कर पाता है. So it includes the stem, leaves, flowers and buds. और हमारे shoot system के अंदर stems होती है, flowers होते हैं, leaves होते हैं and इस तरह से ये क्या करते हैं? हमारा पूरा shoot system बनाते हैं. So let's see the stem first. So stem is important for plants because it holds the leaves in position and helps them separate as the plant grows. So बच्चों stem जो है वो important है and stem क्यों important है? क्योंकि stem जो है वो leaves को hold कर रही है and इस तरह से वो क्या करती है? वो बाकी के plant parts को separate करती है and leaves को grow करने में help करती है. So it also helps leaf get enough light for photosynthesis और stem की वजह से ही leaves को अच्छी खासी light मिल पाती है जिसकी वजह से ये लोग फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. Now, the stem carries water and minerals, salts from roots to the leaves and transports food made by the leaves to other parts of the plant. So, अब stem का function क्या है? Stem carry करती है water को, nutrients को, minerals को and also stems जो है वो leaf के बनाए गए food को एक जगह से दूसरी जगह transport भी करवाती है. So, a green stem contains chlorophyll and can make food through photosynthesis. So, बच्चों stem के पास chlorophyll होता है and हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ रखा है कि जिस चीज के पास भी क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड दे कैन डू फोटोसिंथेसिस. सो हमारी स्टेम्स जो है वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है. सो द स्टेम has nodes which are points from which leaves or branches arise. So now बच्चों आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि हमारी स्टेम के पास क्या है? ये नोड्स है, ये पॉइंट्स है एंड इन पॉइंट से ही क्या होता है? हमारी दूसरी स्टेम्स जो है वो अराइज हो रही होती है, हमारी ब्रांचेस जो है वो यहीं से या फिर लीव्स जो है वो यहीं से अराइज होती है. सो द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड. सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ये दो नोड्स है एंड इन दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनोड. So now here we have another activity and इसमें हमारा aim क्या है कि हमको observe करना है water किस तरह से stem के through move करता है. So हमको इसके लिए material क्या चाहिए? हमको white flower चाहिए जिसकी short stem हो और फिर हम लोग एक clear glass लेंगे या jar लेंगे, then हम लोग एक red food color लेंगे and water लेंगे. So now the procedure is सबसे पहले हम लोग fill करेंगे हमारे glass को या jar को पानी से, then उसके अंदर हम लोग डालेंगे few drops of red color एंड देन हम उसको वाटर के साथ मिक्स कर देंगे. इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग ट्रिम कर देंगे स्टेम ऑफ वाइट फ्लावर को एंड देन हम उसको ग्लास जार के अंदर फिट करेंगे. अब हम क्या करेंगे? हम प्लेस करेंगे फ्लावर को कलर्ड वाटर के अंदर और उसको थोड़े टाइम तक या फिर पूरी रात तक हम उसको वहीं पर रहने देंगे. अब हमको क्या करना है? हमको चेंज जो हमारे पेटल्स के अंदर देखने को मिलेगा हमको उनको ऑब्जर्व करना है. सो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी हमारी? हमको ये देखने को मिलेगा कि जो पेटल्स है हमारे फ्लावर के उनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है एंड उनका कलर जो है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जो कि पानी का कलर है. सो ये प्रूफ करता है कि वाटर स्टेम के थ्रू अपवर्ड राइज हुआ है. सो नाउ वाटर लेवल जो है ग्लास के अंदर वो भी डिक्रीज हो गया है जिसका मतलब स्टेम ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है. सो नाउ कंक्लूजन क्या मिलता है हमको कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है रूट से दूसरे पार्ट्स के अंदर प्लांट के अंदर एंड ये सारी चीजें जो है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है? स्टेम के थ्रू. एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट की ग्रोथ के लिए. Now students, next we have stem modification and अब हम लोग कुछ modifications पढ़ने वाले हैं stem के अंदर. So हमारे पास कुछ plants है जैसे कि cactus और jade और इनकी stems क्या करती है? ये swell up हो जाती है. So ये swell up होके क्या कर रहे हैं? ये food को store कर रहे हैं. So some plants like cactus have flat stems and leaf-like structures to perform photosynthesis. So अब हमारे पास कुछ stems है जैसे कि cactus की stem and हमारे पास कुछ leaf-like structures है जो कि एक special function perform कर रहे हैं, that is photosynthesis. Then we have stems can modify as thorns
और हार्ड शार्प prickles to protect the plant from animals. So now बच्चों स्टेम्स के अंदर एक और मॉडिफिकेशन देखी गई है कि ये अपने आप को कुछ हार्ड सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर थॉर्न्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं. सो हम लोग जो थॉर्न्स देखते हैं रोज प्लांट के ऊपर वो एक्चुअल में स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है. Now next we have climbing plants like grapes and passion flowers have modified stems called tendrils which help them to attach to other plants for support. So now बच्चों हमारे पास कुछ climbing plants है and ये climbing plants क्या है grapes और passion flowers and इनकी stems भी जो है वो modified हो चुकी है और इनकी stems जब modified हुई है तो इनको हम बोलते हैं tendrils. So ये tendrils क्या करते हैं ये हमारे plants को दूसरे object के साथ attach होने में help करते हैं ताकि उनको support मिले and वो grow कर सके. Now we have underground stems and underground stems क्या है हमारे पास tubers जैसे कि potato, then we have rhizomes जैसे कि ginger and we have bulb for example onion और ये सारे क्या कर रहे हैं ये store करते हैं food को और plant reproduction में help करते हैं. Then we have plants जैसे कि रोज, जैस्मिन एंड हिबिस्कस ये सब जो है वो न्यू प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं अपनी स्टेम कटिंग से ही. सो आप लोगों ने देखा होगा यूजुअली जिनके भी घरों में रोज होता है सो वो अपने रोज प्लांट्स को और बढ़ाने के लिए उसी की स्टेम को कट कर कर सॉइल के अंदर डिग कर देते हैं जिससे एक नया रोज प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है. So now students over here we have thought shower. So अब हमको डिस्कस करना है other plant with similar defenses such as cacti. So अब हम लोगों को एक और ऐसा प्लांट डिस्कस करना है जिसके कुछ कुछ फीचर्स जो है वो कैक्टी जैसे ही यानी कि कैक्टस जैसे ही है. सो जिस तरह से कैक्टस के पास स्पाइन्स होते हैं उसके पास थॉर्न्स होते हैं सिमिलरली वैसे ही थॉर्न्स हमको रोज प्लांट के अंदर भी देखने को मिलते हैं जिससे कोई भी एनिमल्स इनको हार्म पहुंचा नहीं सकते. Now students, next we have leaves and leaves are the food factories for plants because they make food through a process called photosynthesis. So बच्चों leaves को हम लोग food factories बोलते हैं हमारे plants की. ऐसा क्यों बोल रहे हैं उनको क्योंकि हम सबको पता है leaves क्या करती है वो plant के लिए food produce करती है by the process photosynthesis. So now बच्चों photosynthesis एक ऐसा process है जिसके through leaves अपने plant के लिए खाना produce करती है but उसके लिए leaves को चाहिए क्या क्या होता है. सो लीव्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में लीव्स नीड वाटर एंड देन लीव्स को सनलाइट भी चाहिए होती है और लीव्स के पास क्लोरोफिल भी होनी चाहिए ताकि वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाए. एंड इन चारों चीजों की हेल्प से लीव्स जो है वो अपने प्लांट के लिए फूड बनाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड साथ में वो बाहर क्या रिलीज करती है ऑक्सीजन. सो लीव्स इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो हमको फूड प्रोवाइड करवा रही है दूसरा वो हमको ऑक्सीजन भी दे रही है. सो नाउ लेट्स सी दी पार्ट्स ऑफ अ लीफ. सो अब हम लोग हमारी लीफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करने वाले हैं. सो सबसे पहले हमारे पास है पेटियोल एंड दिस इज लाइक अ लीफ स्टॉक व्हिच कनेक्ट्स इट टू द स्टेम. सो पेटियोल क्या है पेटियोल जो है वो लीफ को उसकी स्टेम के साथ अटैच कर रहा होता है तो एक पतली सी जो डंडी होती है उसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं. Then we have leaf blade or lamina. So this is the flat green part of the leaf where photosynthesis mainly occurs. So अब हम लोग बात करेंगे लीफ ब्लेड की या लैमिना की जो लीफ का पूरा फ्लैट सरफेस होता है वही हमारा लैमिना या फिर लीफ ब्लेड है एंड इसी सरफेस के ऊपर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है. Then we have midrib and ये सेंट्रल वेन है हमारे लीफ का जिसके अंदर स्मॉलर वेन्स हम लोगों को निकलती हुई दिखती है. सो ये रहा हमारा मिडरिब. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सेंटर में हमारे पास एक मिड रिब है जिसके अंदर से छोटी छोटी वेन्स जो है वो बाहर निकल रही है. Then we have veins. So these form network of smaller branches in the leaf that supports its structure and help transport water, nutrients and food. So यहाँ पर हम लोग बहुत सारी veins को निकलते हुए देख सकते हैं और ये veins क्या करती है ये water, nutrients, minerals, food इन सब का transportation में help करती है. Now the arrangement of veins in a leaf is called venation. So now बच्चों हम लोगों ने बहुत सारी leaves देखी होगी and leaves के अंदर majorly हम लोगों को दो vein system देखने को मिलते हैं and veins के pattern को ही हम लोग क्या बोलते हैं venation. So venation जो है वो हमारे पास दो तरीके की है parallel and reticulate. So let's see the parallel one first. So parallel venation occurs when the vein runs parallel from the base to the tip of the leaf. So now बच्चों हम लोग क्या देख सकते हैं parallel venation के अंदर veins जो है वो एक दूसरे के parallel जा रही होती है इस तरह से
एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या है, बनाना एंड अनियन लीव्स। और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, जब वेन्स जो है वो नेटवर्क बनाती है, वेन्स जो है वो एक नेटवर्क लाइक पैटर्न बनाती है दोनों साइड्स पे ऑफ द मिड रिब। सो इस तरीके के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। एंड ये कौन सी लीव्स में देखने को मिलता है, पीपल एंड मैंगो लीव। सो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक नेटवर्क बना हुआ है वेन्स का। सो इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। Now next we have functions of a leaf. So a leaf is important for a plant and usually green due to presence of green pigment called chlorophyll. So बच्चों leaf जो है उसके बहुत important function होते हैं plant के लिए। and leaf का color green किस लिए होता है, क्योंकि leaf के पास एक green pigment होता है जिसका नाम है chlorophyll. So during photosynthesis plant use carbon dioxide, water, chlorophyll and light to make food. And हम लोगों ने अभी इस चीज के बारे में पढ़ा था। सो ये रही हमारी केमिकल इक्वेशन जिसमें हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी एंड ये बना रहा है ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। सो द फूड इज स्टोर्ड इन लीव्स, फ्रूट्स एंड स्टेम्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे लीव्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में। सो बनाया ग्लूकोज जाता है बट ग्लूकोज का ही कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या होता है, स्टार्च। Now, plants breathe through tiny openings called stomata under their surface. अब बच्चों प्लांट, आप लोगों ने ये चीज जरूर देखी होगी कि लीव्स हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। सो अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैस आना जाना जो है वो कहाँ से लगा हुआ है। सो लीव्स के पास छोटे छोटे से पोर्स होते हैं उनके सरफेस के नीचे। सो अगर ये लीफ है, सो लीफ का ये अपर सरफेस है एंड इसके लोअर सरफेस पे हमको छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। सो अब ये स्टोमेटा ही रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज इन गैसेस के लिए एंड ऑल्सो इन्हीं स्टोमेटा में से थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो भी बाहर निकलता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। एंड जब स्टोमेटा के अंदर से वाटर लूज होता है, सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। So now students, transpiration helps the plants in the following way. So let's see why transpiration is useful. So similar how sweating cools us, transpiration helps cool plant leaves. So बच्चों जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा अगर हमको स्वेटिंग होती है तो उसके बाद हम लोग काफी ज्यादा कूल फील करते हैं। So similarly जब प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन होती है, so प्लांट भी कूल फील करते हैं। Then transpiration pulls water upward from roots and brings essential nutrients to the leaves for plant growth. अब बच्चों ट्रांसपिरेशन में होता क्या है कि पानी जो है वो रूट से ऊपर की तरफ खींचा जाता है एंड देन वो बाहर निकल जाता है। सो इसमें होता क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो रूट से लीव्स की तरफ या फिर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के पास जाते हैं एंड अ प्लांट ग्रो कर सकता है। सो ट्रांसपिरेशन रिलीजेस वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स एंड लीड्स टू प्रेसिपिटेशन एंड कंप्लीट द वाटर साइकिल। सो बच्चों अब होता क्या है, ये ट्रांसपिरेशन में जो वाटर रिलीज हो रहा होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में होता है, यानी कि गैस की फॉर्म में होता है। एंड जैसे ही ये वाटर वेपर अपवर्ड जाता है एंड इसको कूल एनवायरनमेंट मिलता है तो ये कंडेंस होकर, ठंडा होकर क्लाउड बना देता है। सो अब होगा क्या कि इन क्लाउड से अल्टीमेटली वाटर जो है वो नीचे आएगा एंड इस तरीके से हमारी वाटर साइकिल भी रेगुलेट होती रहती है। सो नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव हैंड ऑन लर्निंग। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं। सो इस एक्टिविटी में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के अंदर। सो इसके लिए मटेरियल्स क्या चाहिए हमको, एक पॉटेड प्लांट और एक पॉलीथीन बैग। सो प्रोसीजर क्या है, हमको ये सिलेक्ट करना है एक हेल्दी पॉटेड प्लांट एंड उसको वाटर करना है हमारे एक्सपेरिमेंट से एक दिन पहले। सो अब हम प्लांट को रखेंगे एक बहुत ही अच्छे लाइट वाले एरिया में जहां पर उसको एक इनडायरेक्ट सनलाइट जो है वो मिले। देन हम लोग पॉलीथीन बैग को जो कि बहुत बड़ा होगा उसको उससे कवर कर देंगे हमारे पूरे एंटायर प्लांट को। सो बच्चों इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से हम क्या करेंगे, हम एक सेक्शन ऑफ प्लांट को ही पॉलीथीन से कवर करेंगे। नाउ कवर द प्लांट विथ पॉलीथीन बैग एंड इंश्योर कि हमारे पास कुछ स्पेस जो है वो रहना चाहिए एयर सर्कुलेशन के लिए। देन हम लोग सेटअप को कुछ घंटों के लिए या फिर एक पूरे दिन के लिए एकदम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। देन आफ्टर टाइम इज अप, रिमूव द पॉलीथीन बैग एंड एब्जॉर्ब वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड। अब जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा तब आपको क्या करना है, आपको पॉलीथीन बैग के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करना है। सो नाउ अब आपको अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है एंड आपको ये नोट करना है कि वाटर ड्रॉपलेट्स थे या फिर मॉइस्चर था या फिर नहीं।
सो आपको देखने को क्या मिलेगा, वाटर ड्रॉपलेट या फिर मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट होगा पॉलिथीन के अंदर, और ये मॉइस्चर जो है वो किसकी वजह से आया है, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से आया है, जहाँ पे वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है लीव्स से, एंड ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। सो कंक्लूजन क्या है कि एक्सपेरिमेंट शो करता है कि प्लांट्स रिलीज करते हैं वाटर को थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। So now students, over here we have thought shower. So reflect the activities we conducted to understand the shoot system and leaves. Did you enjoy observing the changes in flowers petals or the moisture inside the polythene bag? Why or why not? So now बच्चों आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताना है कि हम लोगों ने जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी, क्या आपको उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में मजा आया, और इफ आया तो क्यों, और नहीं आया तो क्यों। Now, here we are going to learn about some leaf modification. So, plants' leaves change shape to become tendrils. Tendrils help plants climb up by gripping onto support. So, बच्चों हम लोग tendrils के बारे में पढ़ चुके हैं, and हम लोगों ने देखा है कि tendrils किस तरीके से अपने plant को support करता है. So, plants with tendrils climb for more sunlight and protection. Some plants modify their leaves into sharp spines. Spines protect the plants and reduce water loss. So, बच्चों tendrils क्या कर रहे हैं, वो अपने plant को ऊपर की तरफ क्लाइंब करने में हेल्प कर रहे हैं, जिससे इनके प्लांट को सपोर्ट मिल रहा है। ऑल्सो हमारे पास कुछ प्लांट्स है जिनकी लीव्स अपने आप को स्पाइंस में बदल चुकी है, एंड ये स्पाइंस उनके प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनिमल से। Some plants store extra food. These plants such as spinach, cabbage, lettuce are eaten as vegetables. So now बच्चों हमारे पास जो ये कुछ plants की leaves है, ये extra food को भी store करती है, and इनका example क्या है, हमारे पास spinach, हमारे पास है cabbage, lettuce जो कि हम vegetable के form में भी खाते हैं. Then we have bryophyllum. Leaves have tiny buds that can grow into new plants. When these buds fall off, they can develop into a new plant. So बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास है ब्रायोफाइलम लीफ, और इसकी लीफ की टिप्स पे, इस तरीके के एजेस पे हम लोगों को एक बर्ड्स दिख रहे हैं, और ये बर्ड्स क्या करेंगे, जैसे ही ये ग्राउंड के ऊपर गिरेंगे तो ये एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। सो सी एक लीफ से कितने सारे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। So now बच्चों we have pick up more. So coleus plants have various pigments like anthocyan and carotenoids. These pigments give purple, red or yellow colors. Coleus uses these pigments alongside chlorophyll to capture sunlight and produce energy. So now बच्चों आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे plants देखे होंगे, and हमारे पास यहाँ पर है coleus plants जिनके पास different pigments होते हैं, जैसे कि red, purple, yellow. So ये coleus plants क्या करते हैं, ये इन pigments के साथ साथ chlorophyll को भी यूज करते हैं। So ये चीज हमेशा याद रखना कि जो हमारे पास colored leaves होती है उनके पास भी chlorophyll होता है, बट वो colored pigment ज्यादा होता है, इसलिए वो हमको colored दिख रही होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास chlorophyll नहीं है। So now अब ये कॉलियस प्लांट इन कलर्ड पिगमेंट के साथ साथ क्लोरोफिल को भी यूज करता है, जिससे वो सनलाइट को कैप्चर कर सके एंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। So now students, here you all have brush up session. So अब आप लोगों को क्या करना है, लेबल करना है डायग्राम को जो कि हमको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का गिवन है। So बच्चों व्हाट इज दिस, दिस इज पेटियोल। देन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोगों को ये वाला पार्ट जो है वो क्या बोल रखा है, सो दिस पार्ट इज लैमिना। देन हियर वी कैन सी वेन्स। सो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वेन्स की तरफ मार्क कर रहे हैं, एंड हियर इट इज द मार्किंग ऑफ मिडरिब। सो नाउ बच्चों अगर हम इन दोनों इमेजेस को ध्यान से देखें, सो हमको इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। दैट यहाँ पे जो ये एरो है ये हमारे लैमिना की तरफ शो कर रहा है, एंड हियर द एरो इज इंडिकेटिंग द वेन्स। Now next we have, then write the names for each correctly. Flat part of the leaf known as lamina. Network of transporting raw materials within the leaf, this is the veins of the leaf. Then central vein of the leaf, this is referred to as midrib. Connection of the leaf to the stem, this is petiole.
नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फ्लावर्स। सो हम लोगों ने हमारे आसपास जरूर देखा होगा कि फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, शेप्स के होते हैं एंड कलर्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रोज फ्लावर है, जैस्मिन है, सनफ्लावर है एंड मैरीगोल्ड है। ऑल्सो फ्लावर्स की डिफरेंट डिफरेंट स्मेल्स भी होती है, राइट। सो द प्राइमरी जॉब ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड। सो फ्लावर का सबसे पहला काम क्या है कि उसको फ्रूट प्रोड्यूस करना है एंड सीड्स प्रोड्यूस करने हैं। सो दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। एंड फ्लावर का ये जॉब जो है वो इतना नेसेसरी क्यों है? क्योंकि अगर फ्लावर्स फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने ही जैसे। सो नाउ the outer leaf-like parts of a flower is called sepals. The sepals protect the flower when it is in its initial stage. Sepals can be separate or joined together. So now बच्चों हम लोगों को यहाँ पर outer leaf part दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेपल। एंड सेपल यूजुअली हमारे फ्लावर को उसके बर्ड स्टेज पर प्रोटेक्ट करता है। So now next we have petals. So petals of a flower can be of different shapes, sizes and colors. So petals जो है वो तो बहुत सारे shapes के हो सकते हैं, colors के हो सकते हैं and sizes के हो सकते हैं. So petals of flowers have natural scent and also attract insects. So अब जो ये petals है हमारे flowers के, ये क्या करते हैं? इनके अंदर एक natural fragrance होती है जिसकी वजह से ये insects को attract कर पाते हैं and ये colorful होते हैं, so beautiful भी लगते हैं. So the ring of colorful petals in a flower protects the reproductive organs of the flower. So now बच्चों हम लोगों को हमारे फ्लावर के अंदर एक रिंग दिखती है कलरफुल पेटल्स की, राइट। सो ये कलरफुल पेटल्स करते क्या है? ये एक्चुअल में हमारे फ्लावर को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बचा रहे होते हैं। सो just inside the petals there are many little structures with swollen tops are called stamen. So बच्चों अब जैसे ही हम लोग पेटल्स के अंदर झांकेंगे तो हमको कुछ क्या दिखते हैं? छोटे छोटे से swollen top के साथ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन। एंड स्टेमन क्या है? स्टेमन हमारे फ्लावर का मेल पार्ट है। देन स्टेमन के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक ये swollen top जिसको हम एंथर बोलते हैं एंड ये एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। सो स्टेमन के अंदर दो पार्ट है, फिलामेंट एंड एंथर। सो नाउ बच्चों द स्टॉक ऑफ स्टेमन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट, यानी कि जो हमारे पास लंबी सी ट्यूब है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं एंड जो स्वॉलन टॉप है उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। सो द एंथर कंटेन्स येलो पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन। सो बच्चों आप लोगों ने पोलन के बारे में जरूर सुना होगा और ये पोलन किसके अंदर प्रेजेंट है? ये हमारे एंथर के अंदर ही प्रेजेंट है। सो इफ वी कट द एंथर ऑफ अ फ्लावर हॉरिजॉन्टली वी कैन सी पोलन ग्रेन्स इन इट। These pollen grains contain the male sex cells of a plant. Stamens form a ring around the female part of a flower called the pistil. So now बच्चों अब हम लोग जैसे ही इस एंथर को कट करेंगे सो हमको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? हमको कुछ ग्रेन्स दिख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। एंड ये पोलन ग्रेन्स के अंदर ही क्या होता है? हमारे मेल पार्ट का सेक्स सेल्स होते हैं। एंड ऑल्सो अब स्टेमन्स क्या करते हैं? स्टेमन्स एक रिंग बनाते हैं एक और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अराउंड जिसका नाम क्या है? पिस्टल। सो अ पिस्टल, इसके अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो नाउ बच्चों ये रहा हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो सबसे पहले जो टॉप पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। और ये स्टिग्मा बहुत ज्यादा स्टिकी होता है तभी इसका नाम स्टिग्मा पड़ा है। सो ये स्टिकी क्यों है? ताकि पोलन ग्रेन्स जो है वो इसके ऊपर आसानी से चिपक सके। सो द मिडल पार्ट ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड दी स्टाइल। सो ना बच्चों स्टिग्मा के जस्ट नीचे जो ये मिडल पार्ट है, जो ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल एंड कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू दी ओवरी। सो ये स्टाइल क्या कर रहा है? ये स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रहा है एंड इस ओवरी के अंदर ही क्या होते हैं? एग्स। और इन एग्स के अंदर ही क्या होता है? हमारा फीमेल गेमीट। सो एग हमारा फीमेल गेमीट है जिसके साथ हमारा पोलन ग्रेन फ्यूज कर एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। सो ओवरी के अंदर एग्स होते हैं एंड इन एग स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। सो दीज ओव्यूल्स कंटेन फीमेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट एंड ओव्यूल्स के अंदर ही क्या है? फीमेल सेक्स सेल्स है हमारे प्लांट के। सो
Pistil is surrounded by a number of female organs called sepals. The female part of a flower, which includes the stigma, style and ovary, is known as carpel in most plants. So बच्चों जो है हमारा ये पिस्टल है, इसके आसपास बहुत सारे क्या होते हैं फीमेल ऑर्गन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेपल्स, एंड देन फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर जिसके अंदर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, उसको हम लोग कार्पेल बोलते हैं बहुत सारे प्लांट्स के अंदर. So in most plants, both stamen and pistil are present in the same flower. So now बच्चों होता क्या है कि बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर तो हमको स्टेमन और पिस्टल एक साथ ही दिख जाते हैं एक फ्लावर के अंदर ही, बट बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर स्टेमन अलग होता है एंड पिस्टल अलग होता है. So now next we are going to learn about fruits and seeds. So fruit is a part of plant that holds seeds, right? So fruit क्या है, हमारे plant का ही part है. So हमारा flower ही convert होता है fruit के अंदर and इस fruit के अंदर seeds present होते हैं. For example apples, oranges, plums, lemons, tomatoes, ये सब क्या है, ये fruits है. So हम इनको क्यों fruits बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर seed present होते हैं. So fruits and seeds are formed from flowers through the process of pollination and fertilization. सो बच्चों अब ये फ्रूट्स और सीड्स जो है वो बन कैसे पाते हैं, हमने जो अभी ऊपर पूरा प्रोसेस पढ़ा कि पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पे गिरेगा, स्टिग्मा से ये पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रैवल करके जाएंगे स्टाइल के थ्रू एंड ओवरी में जाएंगे. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है जिसके अंदर फीमेल सेक्स सेल्स है. सो जब ये पोलन ग्रेन्स और फीमेल सेक्स सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन. एंड जो हमारा ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर उसको बोला जाता है पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की वजह से ही फ्रूट्स फॉर्म होते हैं एंड सीड्स आ पाती है. सो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल. पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर जाकर ट्रांसफर होते हैं. सो दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज और इवन बाय विंड एंड वाटर. सो नाउ बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि हमारे फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं, सेंट होते हैं, ये इंसेक्ट्स को, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करती है. सो अब इस अट्रैक्शन की वजह से होता क्या है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिर जाते हैं. सो अब ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर इन इंसेक्ट्स, बीस और बटरफ्लाइज की वजह से ही हो पाता है और कभी कभी विंड एंड वाटर की वजह से भी. So now next we have pick up more. Seeds have special features to survive in different environments. So seeds के पास कुछ special features होते हैं जिससे वो different environment में survive कर सकते हैं. So कुछ seeds के पास क्या होती है, harder outer shells होती है जिससे वो अपने आप को protect कर सकते हैं harsh environment से. And कुछ के पास क्या होते हैं, wings और parachute जिससे वो travel कर सकते हैं longer distance पे. So now students, next we have pollination. So for a flower to become into a fruit and produce seeds, pollen grain must move from the anther to stigma. This movement is called pollination. So बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा कि pollination क्या होता है. pollination के लिए anther से pollen grains जो है वो stigma के ऊपर जाकर stick होने चाहिए and इसी process को बोला जाता है pollination. So यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक हमारे पास है self pollination and हम इसको self pollination क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही flower के अंदर हमारे पास पिस्टल भी है एंड हमारे पास इधर स्टेमन भी है. सो अब इसी के एंथर के पोलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पर आकर गिरेंगे एंड ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ. देन हमारे पास है क्रॉस पॉलिनेशन. हमारे पास एक फ्लावर के जो हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ पर जा रहे हैं, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं. सो जब भी पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे सो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. और अगर पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. सो नाउ बच्चों many flowers are colorful and a sweet smell to attract insects like bees. So अब flowers के पास क्या होती है, ये colorful होते हैं, sweet smell होती है इनके पास ताकि ये bees को attract कर सके. So जैसे ही कोई insect land करता है flower के ऊपर तो होता क्या है, pollen grain उनसे चिपक जाता है. So pollen grain sticks to its body and pollen जो है वो अब rough off हो सकता है किसी दूसरे flower पर and इसकी वजह से हो पाता है pollination. So जैसे ही ये insect किसी दूसरे flower के ऊपर जाकर बैठेगा so वहाँ पे ये pollen grains जो है वो गिर सकते हैं एंड इसी प्रोसेस की वजह से pollination हो पाता है. So after pollination, ovules in the flower change into seeds and the ovary develops into a fruit. So pollination के बाद क्या होता है, ovules जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, seeds के अंदर. एंड जो हमारे
हमारी जो ओवरी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर. सो अंडर द राइट कंडीशन व्हेन देयर इज इनफ वाटर, एयर एंड वार्म, सीड जो है वो ग्रो हो सकता है एक बेबी प्लांट के अंदर, एंड इसी प्रोसेस को बोला जाता है जर्मिनेशन. So now students, here we have wrap up. So let's revise the things that we have learned. So plants के पास दो main parts होते हैं, root system and shoot system. So roots are underground and they are helping the plant so that they can stick inside the soil and can stay at the one place. Then we have two types. So we have two types of roots, tap root and fibrous root. So we have two types of roots, that is tap roots and fibrous roots, and roots can be modified for support, storage and propagation. And हम लोगों ने अभी देखा था कि roots के अंदर modification है जिससे हम उनको storage के लिए use कर सकते हैं, support के लिए use कर सकते हैं. Then we have shoot system, and shoot system जो है वो ground के ऊपर होता है जिसके अंदर stem है, leaves है, flowers है and fruits है. Then stems, it can also be modified, and stem modification show करके क्या कर रही है, वो support दे रही है, protection दे रही है, photosynthesis कर रही है, food storage है and reproduction करवा रही है. Then we have leaves. So leaves जो है वो green color के होते हैं, इनके पास chlorophyll होती है जिससे लोग क्या कर सकते हैं, food produce कर सकते हैं from carbon dioxide, water and light. Then flowers, they are the reproductive organs of plants and they contain stamen and carpel. So plants जो है, जो flowers जो है वो क्या है, reproductive organs है and इनके पास stamen भी है and carpel भी है. So pollen grains are transferred from anthers to the stigma for pollination, and pollen grains जो है वो anther से stigma की तरफ transfer होते हैं and इसी process को क्या बोला जाता है, pollination. So seeds contain an embryo that can grow into a new plant under suitable condition, and seeds जो है वो embryo के अंदर change होता है right conditions के अंदर and इसी process को बोला जाता है germination. So now students, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have assertion reason, life skill and case study. Then you also have prescribed questions. So I want you all to complete this exercise, and this completes our chapter. I hope you all have understood this chapter, and now I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye-bye.